I welcome you all for the Clue for Evidence news series. I am Richa Sharma, and today we have with us Mr. Ashutosh Kumar Panchal sir. He is Sub Inspector from National, has done his masters from Gujarat Forensic Sciences University, and sir has his specialization in field of forensic ballistics, physical science, physical evidences, and fingerprinting. Right now, he is serving in the fingerprint division in National Crime Records Bureau. Sir, I welcome you to this from all the volunteers and the department in our organization Evidence, and we are really glad to have you with us today, and thank you so much for being with us. Okay, thank you, Richa, for your nice introduction about me. Sir, now we are beginning. Yes, sir. So, starting, sir, as your field is fingerprints, and fingerprinting is a very valuable police tool which is used for tracking suspects. But always it is not perfect. So, sir, according to you, what do you think? How much reliable is fingerprinting in solving cases? Okay, if we talk about the fingerprint, then the fingerprint is mainly rely on the two basic principles. The first one is the permanency, and the second one is the uniqueness. मतलब permanent है एकदम कि it will stay, it will remain the same from the birth to the death. And दूसरा है the uniqueness. Uniqueness in case we can talk about the rich details कि उनकी जो rich details है, जो पेक्चुलरिटीज है वो एकदम यूनिक है. तो उस हिसाब से अगर हम बात की जाए तो ये दोनों प्रिंसिपल के रिगार्डिंग में फिंगरप्रिंट अपने आप में एक यूनिक एविडेंस माना जाता है. सो इन ईच एंड एवरी क्राइम there may be some chances of the fingerprint found. So in that case, the fingerprint is a reliable, 100% reliable evidence for detecting the crime, for linking the crime, and for also to solve the crime. But here, in some conditions which I actually want to share with you, कि अगर आपको फिंगरप्रिंट जो मतलब कंपैरिजन पर्पस के लिए अगर चाहिए तो फिट होना चाहिए फॉर कंपैरिजन. एंड द सेकंड थिंग इज अगर बहुत सारे जो केसेस है रिगार्डिंग द फिंगरप्रिंट, उसमें जो फिंगरप्रिंट्स होती है वो स्मज होती है, नॉट फिट फॉर कंपैरिजन. और बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि सुपर इम्पोज्ड जो चांस प्रिंट्स मिलती है हमें, तो सुपर इम्पोज्ड चांस प्रिंट को हमें एग्जामिनेशन करने के लिए बहुत मतलब इट्स अ टीडियस जॉब. मतलब तो इट्स नेक्स्ट टू मतलब इम्पॉसिबल ही रहता है कि उसमें स्मजिंग भी बहुत होती है, एक दूसरे ओवरलैपिंग रहती है फिंगर रिजेस, तो ज्यादा उसमें हम कुछ कंक्लूसिव एविडेंस तक पहुंच नहीं पाते हैं. हाँ, बट अगर हमारी जो चांस प्रिंट मिली है वो सही तरीके से डेवलप हुई है, सही तरीके से लिफ्ट हुई है, फोटोग्राफ हुई है, तो इट्स 100% लीड्स टू द क्रिमिनल ऑफ एन इंडिविजुअल. जिसने भी वहां पे प्रिंट छोड़ा है वहां तक लीड करता है. Okay, sir. So, sir, as you are working from past 3 years in this department, and there are a lot of new technologies coming up and a lot of changes are happening. So, according to you, what is your opinion about these advanced fingerprinting identification technologies, and what do you think about it? Well, I would like to share some of the past experience कि जो मतलब as I am working in Central Fingerprint Bureau, there the National Police Commission has decided कि we will go with the digitization of fingerprints. Because पहले क्या होता था कि जो स्लिप्स, हार्ड स्लिप्स, मतलब जो हार्ड कॉपी ऑफ द स्लिप्स आती थी फिंगरप्रिंट फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट्स टू द सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो, तो इसमें क्या रहता था कि जैसे हार्ड कॉपी आती है, फिर उसको एनालिसिस करना, क्लासिफिकेशन करना, फिर देन उसको पिजन हॉल में डालना, तो इट्स एन बहुत टेडियस जॉब था ये. फिर अगर कोई सर्च आता है पुलिस स्टेशन से या कोई कंसर्न ब्यूरो से, तो उसका भी हमें सर्च का क्लासिफिकेशन करके फिर हर एक ट्रे में जा जाके ढूंढना. तो मतलब ये एक काम मतलब ऐसे रहता था कि वो मैन पावर का भी लॉस होता था वहां पे, और जो एफिशिएंट वर्क होता था वो नहीं हो पाता था. तो इस सब को अवॉइड करने के लिए
नेशनल पुलिस कमीशन ने सेफ पीबी के साथ मिलके, मतलब जो एनसीआरबी हमारा जो पेरेंट डिपार्टमेंट है, एनसीआरबी के साथ मिलके एक जो एडवांस फिंगरप्रिंट, ऑटोमेटिक फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया इन 1992 में। तो जो इंडिया में हमारा जो बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द एडवांस फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम तब से स्टार्ट हुआ था 1992 से। देन जो फैक्ट सिस्टम आया था, फैक्ट मींस फिंगरप्रिंट एनालिसिस एंड क्रिमिनल ट्रेसिंग सिस्टम, जिसको हमने फैक्ट्स नाम दिया था। जैसे सभी जगह ने एफिस इज ऑलवेज अ ब्रांड नेम, बट उस सबको जो जिन जिन लोगों ने मतलब अडोप्ट किया, उन लोगों ने अपने हिसाब से अपना नाम दिया था। तो फैक्ट्स 1.0 था, तो उसमें जो कैपेसिटी थी ऑफ द स्टोरेज ऑफ द फिंगरप्रिंट वो बहुत कम थी। फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली उसमें बहुत सारे चेंजेस आते गए, बट एक टाइम आया तब उनका एल्गोरिथम भी इतना स्ट्रांग नहीं था, ना उनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी ज्यादा थी। तो फिर recently in 2017, I think in the end of the 17, the NCRB has conceptualized the NAFIS, National Automatic Fingerprint Identification System, which is a robust system which is capable of 8 million fingerprint data, which is a web-based application. ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन थी। जो पहले थे हमारे पास एफिस था, वो वेब बेस्ड नहीं था। उसमें आप आपका जो डाटा था वो कंसर्न स्टेट के साथ शेयर नहीं कर सकते थे। आपको मतलब जो स्टेट्स थे उनको यहाँ पे सीएपीबी में हार्ड कॉपी भेजनी पड़ती थी, फिर हम उनको एनालिसिस करते, हम अपने सिस्टम में डाल के फिर हम उनको रिप्लाई देते थे, रिपोर्ट देते थे, ओपिनियन देते थे। तो ये जो पीरियड था, ये बहुत टाइम टेकिंग पीरियड था। तो इन सब चीजों से हमने मतलब ये नेफिस आने की वजह से बहुत सारा टाइम हमारा बच जाएगा। पर इनका जो एल्गोरिदम है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो इजी इन सेकंड्स इट विल डिटेक्ट, इट विल आइडेंटिफाई द चांस प्रिंट, इट विल मैच, जो मैचिंग बोलते हैं कि मैच कर लेता है, 10 प्रिंट्स मैच कर लेता है। फिर द सेकंड थिंग इज कि हमने अलाउ किया स्टेट्स को, पुलिस स्टेशन लेवल पे भी वहां से सर्च कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, एक रियल टाइम बेस्ड एप्लीकेशन हो गया कि रियल टाइम पे आप वहां से बैठे बैठे, अपने पुलिस स्टेशन से बैठे बैठे आप सिस्टम में कोई भी अरेस्टी पर्सन का डाटा डालिए, आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा। सो ये मतलब एकदम ग्रोइंग चेंज हुआ है, ग्रेजुअल चेंज, एकदम फास्ट चेंज हुआ है ये नेफिस आने की वजह से। फिर तो डाटा स्टोरेज है वो भी बहुत ज्यादा है, और द एआई टूल ऑब्वियस चीज है। अभी जो मॉडर्न एरा चल रहा है उसमें एआई का बहुत सारी जगह पे यूज होता है। तो हमने भी अपनी फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम में एआई का यूज किया है। तो इट विल मेक प्रिंट वेरी क्लियर। जो जो बैकग्राउंड होता है, जो डट बैकग्राउंड होता है वो निकाल देता है, एकदम क्लियर करता है। और जो एकदम बोलते हैं ना कि हमें जो कंसर्न, जो मतलब हमारा इंटरेस्टेड एरिया है, उसी में से सर्च करके हमें रिजल्ट देता है। एंड इट्स 99.9 मतलब 100% श्योर है कि वो मैचिंग 100% श्योर लेके आता है। सो वी आर नाउ रनिंग विद हेलो। Actually, sir, like when we are theoretically studying it, we see a lot of development techniques are there, and when we do practical, there are quite few which we can actually perform. So, sir, according to you, when we have developed a latent print and you have solved so many cases, so on field, which technique is the best to do so? Personally, I suggest that it's depend upon the crime scene. Always the crime scene is a unique. Every time when you visit the crime scene, it will change from the previous one. And the chance print, obviously the chance print depend upon some various factors. The factors like कि किस surface पे chance print आपको मिली है, then the environment conditions क्या क्या है वहाँ की, then the physical appearance is always matter, कि जो पर्सन है वो एकदम सिंगल टच करके गया है कि उसने जो मतलब सरफेस पे हाथ रखा था वो थोड़े सेकंड के लिए, मतलब माइक्रो सेकंड के लिए भी वहां पे टच हुआ था। तो वहां पे मतलब जो आपकी चांस प्रिंट की जो क्रेडिबिलिटी है वो ज्यादा आपको बढ़ जाती है, मतलब प्रोबेबिलिटी वहां पे ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऑलवेज एन एक्सपर्ट इन द गुड प्रैक्टिसेस, तो द गुड प्रैक्टिस इज ऑलवेज टू डिटरमाइन कि द सरफेस क्या है आपकी,
अब सर्फेस के अकॉर्डिंग आप कौन सी टेक्निक वहां पे यूज कर सकते हैं, एंड देन आप आगे की जो प्रोसेस कर सकते हैं। सो जो बेसिकली अगर देखा जाए तो अभी मतलब ब्लैक पाउडर और व्हाइट पाउडर और ग्रे पाउडर, मतलब basically in most of the cases we routinely use this three type of powder. But अगर in case on some exceptional case like currency notes आ गई, या फिर कोई मतलब ग्लास बोटल्स कोई ऐसे सबमर्ज हो गई वाटर वाटर के साथ, तो उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स पे हम आगे जा सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ अगर स्टार्टिंग की बात करें, अगर मेरे हिसाब से मतलब मैंने जो क्राइम सीन्स अटेंड किए हैं, उसमें तो मुझे मेजोरिटी ऑफ ब्लैक पाउडर एंड व्हाइट पाउडर इज इनफ। मुझे तो मतलब हमारा काम हो जाता था, हमें कोई आगे कोई मतलब न्यू टेक्निक मतलब ऐसे कोई करने की जरूरत नहीं पड़ती थी फॉर फर्दर प्रोसेस के लिए। So I was saying sir, that as you said that every crime scene is very unique and it is very different from the previous one. So like when we basically go to a crime scene, so what are the areas we look for fingerprints, like general areas? Okay. So an expert always mention in his diary, make a note. So while actually in case of mine only, I'm just telling you. So I always look after the entry and exit points where you can find the definite, मतलब वहाँ पे चांसेस ज्यादा रहते हैं फिंगरप्रिंट, मतलब जो चांस प्रिंट है वहाँ पे मिलने के। फिर देन वी विल look ahead, look forward, the areas where टेबल, फिर ग्लास आ गया, फिर जैसे एग्जिट पॉइंट में विंडो पैन्स आ गई, विंडोज आ गया। फिर समटाइम इफ यू टेक अ कार एज एन क्राइम सीन कार, तो कार में भी आपका जो ग्लास डोर है वहां पे आ गया। फिर जो रियर मिरर जो होता है, पीछे वाला मिरर जो हम ठीक करते हैं, वहां पे भी आपको चांस प्रिंट मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। फिर ऑन द स्टेयरिंग ऑल्सो। So likewise, there are so many of possibilities where one can find the chance print. But this is the possibilities. Not every time you will get a chance print from there only, because the crime scene is always a full of crime. मतलब इस पूरा एरिया ये है, तो आपकी हमें अपनी आप को इतना कंस्ट्रिक्ट नहीं करना है कि हाँ यही क्राइम सीन हो सकता है। इट विल ऑलवेज हैपन Yes, कि sir. अगर एक रूम में क्राइम हुआ है अगर, तो दूसरे वाले रूम में भी कहीं ना कहीं से कोई फर्स्ट एंट्री या एग्जिट का कोई ना कोई चांस हो सकता है। तो वी हैव टू सर्च अकॉर्डिंगली इन आवर क्राइम सीन। फिर Yes, sir. एंड ऑल्सो द थर्ड थिंग इज कि अगर हम क्राइम सीन पे मतलब जाते हैं, जो सर्च करते हैं, तो सर्च भी आपकी एक पैटर्न होनी चाहिए। इवन पैटर्न होगी तो आपका जो सर्च होगा, जो आपको जो एविडेंस मिलने का चांसेस होगा वो ज्यादा बढ़ जाएगा, जो आपका एरिया होगा ना वो ज्यादा बढ़ जाएगा। सो ऑलवेज लुक फॉरवर्ड रिगार्डिंग द एविडेंसेस। एंड अगर फिंगरप्रिंट की बात की जाए कि फ्रीक्वेंट टाइप्स ऑफ फिंगरप्रिंट व्हाट आई फाउंड इन क्राइम सीन, देन इट्स ऑलवेज अबाउट, मतलब जो लैटेंट प्रिंट मिलते हैं हमें वही मिलते हैं। लैटेंट प्रिंट ऑन द जो डोर होता है, डोर का नोब होता है वहां Yes, पे sir. होता है, जो ओपनिंग ओपनिंग करने के लिए। फिर समटाइम्स रिसेंटली मतलब हमारे साथ रिसेंटली जो तो ग्लास, खाली ग्लास बोटल्स होती है, प्लेट्स होती है खाने की, वहां पे भी आपको कभी कभी फिंगरप्रिंट मिल जाता है। So likewise, these are the frequent types of fingerprint, and it's always depend upon the crime to crime, differ from crime to crime. Like in murder case में अगर वेपन कोई यूज हुआ है, तो आपको शायद ब्लडी प्रिंट, जो ब्लड प्रिंट्स बोलते हैं हम, जो प्लास्टिक प्रिंट बोलते हैं, वो मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इन सम केसेस ऑफ रेनी सीजन, तो आपको वहाँ पे मड मड प्रिंट्स भी मिल सकते हैं। Okay, sir. So, sir, basically, when you go to a crime scene, what are actually the precaution one should take care while analyzing the crime scene? While I'm going to the crime scene, we usually check our kit for a fingerprint kit. फिंगरप्रिंट किट में हमारे पास इनफ पाउडर मटेरियल है कि नहीं है। देन फॉर द मतलब हमारे पास जो ब्रश है, मैं जो निडल्स सब कुछ होते हैं कि ब्रश या जो जो कोई भी डिटेल होती है, टेप है, टेप फॉर लिफ्टिंग, देन आवर कैमरा, देन आवर लाइट सोर्स। So first, मतलब as an expert, when you go Yes. to crime scene, you always check
कि आपके पास वहां जाने के लिए मतलब जो इनफ मटेरियल है कि नहीं है, सामान है कि नहीं है आपके पास, जो बोलते हैं उसको टूल्स बोलते हैं हम, कि फिंगरप्रिंट टूल्स है कि नहीं आपके पास, ठीक है। इसके आने के बाद अगर हम वहां पे जाते हैं, देन वी ऑलवेज एज एन फर्स्ट रिस्पॉन्डर, अगर तो हम नहीं होते हैं क्योंकि आईओ होता है, तो आईओ वहां पे मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करा देता है सब कुछ चीजें। बट एंड देन वी विल ऑलवेज मेंशन कि जो क्राइम सीन है आपका वो बैरिकेड होना चाहिए, उसकी ऑथेंटिसिटी इंटीग्रिटी शुड बी रिमेन सेम व्हाइल डूइंग द क्राइम सीन। आपको कोई भी चीज मतलब पहले अगर आप क्राइम सीन पे जाते हो, फिंगरप्रिंट के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ ना, तो फिंगरप्रिंट इज वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कहाँ कहाँ आपको ट्रांसप्रिंट मिल सकती है। लाइक जो अदर मैं Yes, sir. बैलिस्टिक्स में मैंने काम किया, तो बैलिस्टिक्स में क्या था कि हमें बुलेट मिलती थी, फायर आर्म मिलता था, तो वो विजिबल होता था, तो हमें पता चलता था। बट इन केस ऑफ फिंगरप्रिंट वी डोंट नो कि कहाँ पे फिंगर मतलब ट्रांसप्रिंट हो सकती है। सो इन दैट केस यू हैव टू बी वेरी शार्प, कि आपको एकदम अलग तरीके से आपके अपने आप को भी सेफ रखना है, और जो एविडेंस है उसको भी सेफ रखना है, ताकि एविडेंस की वैल्यू भी बनी रहे और हम कंक्लूसिव ओपिनियन तक पहुंच सकें। तो ये हम जब हाँ। Okay, sir. Sir, like you said before that when you initially joined, there were different initial methods. There were, more physical method, and then you switched to advanced technologies. So, sir, still now when you work, so according to you, what advancement or how technology should be changed so that it can help experts? Like, sir, what is the loopholes right now you are facing in analyzing and the reporting part? इफ आई कैन से, देखो हमारी ब्यूरो में दो तरह का काम होता है। एक तो जो ट्रांसप्रिंट आती है हमारे पास, जो कंसर्न स्टेट्स हैं, ठीक है, और एक काम होता है डॉक्यूमेंट केस का। सो डॉक्यूमेंट केस का जो पार्ट है ना, वो भी बहुत मैटर करता है हमारे लिए। सो अगर हम एडवांसमेंट की बात की जाए, तो जो ट्रांसपेरेंट हमें मिलती है वो बहुत ही स्मजी होती है, कभी कभी बहुत स्मजी होती है। समटाइम्स वी कांट मतलब वी कांट कलेक्ट, क्योंकि ऐसी ऐसी जगह पे होती Yes, है, मतलब जो एंगल्स पे होती है, तो वहां पे हम उसको लिफ्ट नहीं कर सकते, तो वहां पे हमें फोटोग्राफी करनी होती है। So the advancement we can say the light source. The expert should equip with more light source, UV light, with xenon lights, or the और और अगर जो फील्ड की बात की जाए, अगर फील्ड पे हम अगर काम करते हैं सबसे ज्यादा, तो द पाउडर शुड बी इन हाई ग्रेड क्वालिटी, द ब्रश शुड बी इन हाई ग्रेड क्वालिटी। क्योंकि एडवांसमेंट, अगर हम एडवांसमेंट की बात करते हैं हम, तो हमारे पास जो ऑलरेडी है उसको हमें और ज्यादा अपग्रेड करना है। अगर न्यू टेक्नोलॉजी तो आती है, बट जैसे yes, आपने बोला कि थियरी में जो पढ़ते हैं और जो हम प्रैक्टिकल फील्ड में जाते हैं वो बहुत ही अलग रहता है। तो जो हमारे पास ऑलरेडी चीज जो yes, है, sir. मतलब पाउडर, Yes. हाँ, तो हम उसको अपग्रेड कर दें ना, तो हमें ज्यादा बेनिफिट बेनिफिट मिलेगा क्राइम सीन पे। और यही बात अगर हम एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो जो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट केसेस आते हैं, सो जो डॉक्यूमेंट केसेस में भी जो प्रिंट होती है वो बहुत स्मज होती है। आपको पता है, मतलब एज वी ऑल नो कि जो हम टेकिंग ऑफ द फिंगरप्रिंट लेते हैं तो हम स्टैम्प पैड से लेते हैं, एंड स्टैम्प पैड इज नॉट एन गुड ऑप्शन टू टेक अ फिंगरप्रिंट, क्योंकि उसमें स्मज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सो Yes, sir. every time we receive the cases, we face the same problem. So to overcome the problem, we should aware the people regarding the usage of the black print, जो black ink जो ये इंस्ट्रूमेंट है का, मतलब एक जो ये आता है, नोटपैड आता है, उसको यूज करना चाहिए, ताकि हम ये सब चीजों को अवॉइड कर सकें। In our sir judiciary system and in our courts, the fingerprints are not recognized as they should. Like they possess a very heavy evidential value, but still scientific evidences lag behind when it comes to court proceedings and submission in courts. So what do you have to say regarding that? First of all, I just want to add some points in this thing. In 1899, the court has allowed and a fingerprint as an evidence, and tell that कि मतलब जो कोई भी पर्सन के पास जो एक्सपर्टीज है रिगार्डिंग द सब्जेक्ट,
who can depose his testimony in the court of law. So first of all, while presenting in the court of law, an expert should always present his evidence in proper manner. All the points regarding the fingerprint. रिगार्डिंग द फिंगरप्रिंट हम बात करते हैं तो जो रिच डिटेल्स हैं वो क्लियरली मेंशन होनी चाहिए. आपका जो चार्ट है वो एकदम सही तरीके से वेल स्टडीड होना चाहिए, ताकि आप अगर कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हो तो वहां पे आप अपनी टेस्टिमनी सही से डिपोज कर सको. अगर आपकी वहां पे कोई क्रॉस टेस्टिमनी भी होती है, देन यू कैन इजीली कन्विंस द जज. यू कैन इजीली कन्विंस द जज कि सर ऐसा नहीं ऐसा था, क्योंकि जो जज जुडिशरी ऑफिसर्स जो रहते हैं वो लेमैन होते हैं, उनको इतना फिंगरप्रिंट के बारे में नॉलेज नहीं रहता है. तो इट्स ऑलवेज एन एक्सपर्ट्स ड्यूटी कि आपको अपने एविडेंस को कन्विंस करवाना है वहां पे. तो ये कभी होगा जब हम इजी अंडरस्टैंडिंग रिपोर्ट वहां पे सबमिट करेंगे. हमारा जो चार्ट हमारा जो रिपोर्ट होगा वो सही तरीके से प्रॉपर मैनर में वेल स्टडीड वहां पे प्रेजेंट होगा. Then and one more thing, अगर जब भी आप कोर्ट डिपोज करने जाते हैं, the expert should always make some proper reading of the court of the case detail. तो केस डिटेल की वजह से वो ज्यादा एक्सप्लेन कर सकेगा कि सर ये चीज थी और ये चीज नहीं थी. तो समटाइम्स क्या होता है, जैसे फिंगरप्रिंट के बारे में अभी रिसेंटली मेरे जो सुपीरियर है उसने डिस्कस किया था उन लोगों ने कि समटाइम्स आपका रिपोर्ट सही है, सब कुछ सही है एकदम, बट स्टिल टू डिले द कोर्ट प्रोसीडिंग समटाइम्स द जो सामने वाला जो ये वकील होते हैं वो आपसे इररिलेवेंट क्वेश्चंस करेंगे कि रिच डिटेल क्या है, ये रिच डिटेल क्या होती है. देखो, आपका जो एक एक्सपर्ट होता है उसने वहां पे प्रूव तो कर दिया, उसका रिपोर्ट तो आ गया, बट स्टिल द ही इज क्वेश्चनिंग ऑन हिज एक्सपर्टीज कि हाँ भाई आपके पास क्या नॉलेज है, आपने क्या क्या पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा है. सो ही विल डिले द प्रोसीडिंग्स ऑलवेज. सो लास्ट टाइम भी मेरे जो सुपीरियर ने बताया था वही हुआ था कि हम लोग जो लेवल 2 डिटेल पे हम अपना रिपोर्ट देते हैं रिच डिटेल पे, एंड इट्स फाइन, मिनिमम 8 माइन्यूशियाज हमें मिलती है तो हम देते हैं. तो दे विल क्रॉस द क्वेश्चन कि आपने इसकी रिज लेंथ नहीं ली है, रिज विड्थ नहीं ली है, ये कोर्स नहीं लिया है, ये नहीं लिया है. सो समटाइम्स एन एक्सपर्ट शुड ऑलवेज बी रेडी टू आंसर द क्वेश्चंस कि भाई हमें लेवल 2 पे ही हम अपना रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं, एंड वी कांट हमें आगे जाने की कोई जरूरत नहीं होती है. सो दिस इज द एक्सपर्ट्स ड्यूटी कि कोर्ट पे आपका अगर एविडेंस सबमिट हो रहा है, डिपोज हो रहा है, तो आपको वहां पे पूरी प्रिपरेशन के साथ जाना है. एंड व्हाट इन एडवांसमेंट में अगर हम बात कर सकते हैं कि अवेयरनेस के बारे में, तो जो CFPB सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो है वो रूटीन बेसिस पे जो जज आते हैं, जुडिशरी ऑफिसर्स आते हैं, पुलिस ऑफिसर्स आते हैं, लॉयर्स आते हैं, तो उनको वर्कशॉप कराता है, उनको ट्रेनिंग देता है टू नो अबाउट द फिंगरप्रिंट. सो दे विल ऑल्सो इजिली गेट द आइडिया रिगार्डिंग द रिपोर्ट कि हाँ इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं. तो द फर्स्ट पॉइंट इज द अवेयरनेस कि हमें ज्यादा से ज्यादा सब लोगों को अवेयर करेंगे अपने फील्ड के बारे में, तभी जाके हम अपनी खुद की एक स्ट्रॉन्ग जो एविडेंशियल वैल्यू है वहां पे हम प्रूव कर सकते हैं. So sir, like as you said that their advocates or the lawyers, they just cross question and they just want to know about the expert. So sir, we would like to you to share some of your experience about the case or some court proceedings that you found was very relevant, or it was some funny incident. If you can share something. Yeah, sure. While I was in my training period, I went to Hyderabad and वहाँ पे एक जो गोल्ड शॉप थी वहाँ पे एक क्राइम हुआ था. एंड मुझे इतना नहीं था कि इतना बड़ा क्राइम सीन होगा. एंड इट टुक अवर 6 hours कंटिन्यूसली वी वर्कड, बिकॉज वहाँ पे जो अलमीराज होती है, जो स्टोरेज होता है, गोल्ड स्टोरेज, वो सब कुछ टूटा हुआ था, सब कुछ खोला हुआ था. सो देर आर 5 to 6 गोल्ड स्टोरेजेस, फिर उनके कैबिनेट्स खुले हुए थे. तो ईच एंड एवरी कैबिनेट यू हैव टू चेक whether the transparent was there or not.
सो उस हिसाब से हमने काम किया। एंड द वन मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब जो इंटरेस्टिंग चीज लगी हमने कि अभी के जो क्रिमिनल्स है बहुत स्मार्ट हो चुके हैं, एज वी ऑल नो कि बहुत स्मार्ट है। तो उन लोगों ने क्या किया था कि जो ग्रीसी मटेरियल होता है उनका जो एक क्लॉथ था उसमें ग्रीसी मटेरियल लगा के सब जगह पे अप्लाई कर दिया। सो वहां पे आपको फिंगरप्रिंट मिलने के चांसेस बहुत मतलब रेयर कम रहते हैं। स्टिल वी वर्क हार्ड, मतलब आवर टीम हैज वर्क हार्ड एंड वी विल फाइनली अचीव्ड, मतलब एट द पॉइंट सम फिंगरप्रिंट हमने वहां पे डेवलप किए व्हाइट पाउडर एंड विथ द ब्लैक पाउडर, बोथ द पाउडर्स वी हैव डेवलप्ड, photographed and also we got some palm print also. So palm print is also admissible. palm print से भी आप आइडेंटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। सो द नेफिस, जो हमारे पास जो नेफिस सिस्टम आ रहा है अभी एडवांसमेंट में, उसमें हमने पाम प्रिंट का भी एक स्पेस रखा हुआ है कि आप पाम प्रिंट से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो नॉट ओनली स्टिक टू द फिंगरप्रिंट बट वी आर गोइंग टुवर्ड्स बियॉन्ड द फिंगरप्रिंट, है ना, हम पाम प्रिंट के पास भी जा रहे हैं। सो वी आर मतलब डीलिंग विद द मल्टी मॉडल बायोमेट्रिक्स। हम मल्टी मॉडल बायोमेट्रिक्स को अपनी ये नेफिस के साथ हम अटैच करेंगे ताकि हमें सबसे ज्यादा मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग जो आइडेंटिटी होती है वो प्रूव कर सके हम कोर्ट ऑफ लॉ में। सो ये केस हुआ था, फिर हमने एविडेंस उठाया एंड वी वेंट इनटू द मॉर्निंग एंड वी केम बाय इवनिंग। तो मतलब पूरा दिन आपका लग जाता है। तो द एक्सपर्ट शुड बी वेरी काम इनफ। ऐसा नहीं है कि चलो भाई जो जो जल्दी जल्दी जो जो एविडेंस मिल रहे हैं वो ले लो और सबमिट करके निकल जाओ, नहीं। यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट इनफ कि आप हर एक जगह पे आपका एविडेंस जो पड़ा है मतलब ट्रांसपेरेंट आपको मिल सकते हैं, वहां पे जाके आप अपना जो एक्सपर्टीज है वहां पे अप्लाई कीजिए और ट्राई टू गेट द गुड ट्रांसपेरेंट, क्योंकि वो कंपैरिजन के लिए आगे भी काम आएगा। फिर ट्रांसपेरेंट डेवलप करके वहां से काम अटक नहीं जाता एक्सपर्ट का। ट्रांसपेरेंट डेवलप करने के बाद उसको लिफ्ट करना है, लिफ्ट करने के बाद आगे आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें प्रोसेस भी करना है। सो दिस आर द स्टेप्स। तो जब तक हमें वेरिफिकेशन मतलब जो आइडेंटिफिकेशन के लिए अच्छी प्रिंट नहीं मिलेगी तब तक आपके एक्सपीरियंस का मतलब हमें जो डेवलपमेंट किया उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। सो इट शुड बी वर्थफुल। सो ये केस था। एक दूसरा केस था कि वहां पे जो सबसे ज्यादा मतलब फिंगरप्रिंट मेजोरिटी ऑफ द केसेस आते हैं थेफ्ट केसेस में बहुत ज्यादा आते हैं और बर्गलरी में आपको बहुत ज्यादा मतलब जो चांस प्रिंट मिलने के चांस है। तो उसमें भी वही हुआ था, एक छोटा सा कमरा था और इट वाज सो मेसी मतलब सब कुछ जो थेफ्ट आए हुए थे मतलब उन लोगों ने थीव्स ने सब कुछ सामान इधर उधर कर दिया था। सो आपको पता नहीं चलेगा कि किस चीज को टच किया है किस चीज को छोड़ दिया है। सो यू हैव टू, हम लोगों ने मतलब हम लोग वहां पे खड़े भी नहीं रह सकते थे, इतनी जगह भी नहीं थी, स्पेस भी नहीं थी। फिर भी टर्न बाय टर्न हमने सब कुछ मतलब लगेज उनका इधर उधर मतलब साइड में किया और वी विल गेट जो क्या बोलते हैं जो ज्वेलरी बॉक्स होते हैं, ज्वेलरी बॉक्स प्लास्टिक के ज्वेलरी बॉक्स थे, तो उनमें हमने फिर फिंगरप्रिंट डेवलप किए एंड वी विल गेट द रिजल्ट। सो लाइकवाइज समटाइम्स इन मतलब एक केस में ये भी हुआ था कि जो क्राइम हुआ था वो बहुत पुराना था, 1-2 महीना हो गया था एंड दे आस्क फॉर द इन्वेस्टिगेशन कि भाई आपको इन्वेस्टिगेशन करने जाना है। एंड देन वी वेंट, वी जस्ट चेक द अलमीरा एंड यू नेवर नो मतलब हम लोगों ने इतनी सुपर इम्पोज प्रिंट पाई कि हमें पता नहीं चला कि कौन सी इनमेट्स की होती है और कौन सी जो कल्प्रिट होगा उनकी होती है। तो कभी कभी क्या होता है जो डिले कॉल आता है, डिले कॉल में भी आपको जो प्रिंट्स है प्रिंट्स मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फिर द क्यूरियोसिटी, हाँ द क्यूरियोसिटी इज द मेन थिंग कि जो क्राइम सीन होता है ना, मैं जाता हूँ क्राइम सीन पे तो आजू बाजू जो मतलब नाइबर्स होते हैं उनकी बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है कि हाँ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो वो अननोविंगली भी डिस्टर्ब कर देते हैं हमारे एविडेंस को। सो दिस आर द मतलब चैलेंजेस भी हम बहुत सारे फेस करते हैं और इसको ओवरकम करने के लिए हमें अवेयरनेस, जो पहले ही बोला है मैंने कि अवेयरनेस रिगार्डिंग द मतलब जो फॉरेंसिक एविडेंस की वैल्यू क्या है वो उनको बतानी है कि क्या क्या चीजें रहती है। जैसे अभी के टाइम पे तो बहुत अच्छा है कि जो क्राइम सीरीज आती है, जो मूवीज आते हैं, जो प्रिंट मीडिया है, वो ऑलवेज टॉक अबाउट द फॉरेंसिक्स, द फिंगरप्रिंट्स। तो द पीपल, द लेमन पीपल स्टिल अंडरस्टैंड मतलब कि हाँ फिंगरप्रिंट की वैल्यू है, आपको छूना नहीं है, कुछ नहीं करना है, इसको दूर रहना है। तो जितनी जितनी अवेयरनेस आती जाएगी
उतने हिसाब से हमारा जो एविडेंस की एक वैल्यू, इंटीग्रिटी रहेगी, ऑथेंटिसिटी रहेगी, वो रिमेन सेम रहेगी, और हम अपना आप मतलब एक फ्रूटफुल मतलब एक रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। Okay, sir. Now, sir, like you are such an expert, like you have worked in the field for so long. So, sir, what is the one piece of advice you would like to give to the people who want to pursue the career in the same field and they are looking for, they want to be fingerprint experts. So, what you want to share with them? Okay, so first of all, I would share some of my experience कि मैंने भी बीएससी फॉरेंसिक साइंस किया हुआ है, एंड देन आई गो फॉर मास्टर्स, एंड देन मैंने नेट क्लियर किया हुआ है। सो ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैंने बीएससी खत्म किया था तब पता चला था कि हम सबको पता है कि फॉरेंसिक्स में इतनी जॉब नहीं है, अब क्या होगा आगे, सब Yes. एकदम हाइपर हो गए थे सबकी, क्या होगा आगे। देन मैंने सोचा मतलब सोचा कि नहीं, अगर फील्ड में इसी फील्ड में आगे बढ़ना है, कोई और फील्ड ऑप्ट नहीं करना है, तो द स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन ऑलवेज विल बी देयर। तो मेरे ऑफिसर ने मुझे बताया कि भाई आशुतोष ये छोड़ो, आप मतलब कुछ और ट्राई कर लो, तो आप आपका मतलब इससे भी आगे जाओगे। तो मैंने बोला नहीं सर, हम इसमें आगे रह के इस फील्ड को हम ग्रो करेंगे, जैसे जैसे हम Yes. इसमें आगे बढ़ते जाएंगे तब तब हम ग्रो करते जाएंगे और अवेयर करते जाएंगे। सो मास्टर्स किया, मास्टर्स के बाद, एंड हाँ, वन मोर थिंग, ऑलवेज अपडेट योरसेल्फ, अपडेट करो, आप अपने आप को अपडेट करो दुनिया के साथ, मतलब आपके आजू बाजू में क्या होता है उनके साथ भी अपडेट करो, क्योंकि मैं हर बार न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तो कोई ना कोई चीज आपको मिल जाती है जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आती है बहुत सारी। Yes, तो sir. हर बार मतलब आप एडवर्टाइजमेंट चेक करते रहिए। सो आफ्टर मतलब मेरे साथ भी वही हुआ है, देखिए यही बोल रहा हूँ कि ये जो मेरा सिलेक्शन हुआ है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू हुआ है। सो फॉर दिस कि हम लोग ऐसे ढूंढते रहते थे, देन आई जस्ट सडनली स्ट्राइक, ओके हाँ ये एडवर्टाइजमेंट आई है, ओके जस्ट फिल द फॉर्म, ये हमारी फिंगरप्रिंट फॉरेंसिक से रिलेटेड ही है, तो हमें इसमें ट्राई करनी चाहिए। देन वी ट्राइड एंड देन आई एम हियर। सो लाइकवाइज कि डीमोटिवेट नहीं होना है, डीमोटिवेट अगर हो जाएंगे आप तो आपको आगे जाने का रास्ता कुछ नहीं मिलेगा। एंड ऑलवेज कॉन्टेक्ट, Yes. इंटरेक्ट विद द सुपीरियर्स, फॉरेंसिक फैटर्निटी पीपल, उनसे आप बात कीजिए तो आपको बहुत सारी गाइडेंस देंगे। Yes, एंड sir. recently the National Forensic Science University also Yes, sir. introduced by Government of India, Ministry of Home Affairs. So obviously कि बहुत सारे चांसेस इन फ्यूचर आएंगे, जॉब ओपनिंग्स आएगी, एंड सो मेनी प्राइवेट फर्म्स आर आल्सो देयर कि जॉब ओपनिंग्स भी आपको मिलेगी। एंड स्पेशली इफ आई टॉक टू मेक अ करियर इन फिंगरप्रिंट, so in every state they have bureau, fingerprint bureau. So the fingerprint bureau always recruited the candidates worked in fingerprint and become an expert. So the every students have to check accordingly कि कहाँ किस स्टेट में किस किस फील्ड में वैकेंसीज आ रही है। सो अपडेट करें अपने आप को, तो आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं हम इस फील्ड में भी। Okay, sir. Thank you so much, sir. Like it was really very nice talking to you and all these knowledge because, sir, when we study theoretically, the things are really very different. But when we talk to an expert or we get to know the practical aspects of it, then things turned out to be very different. Like what we see and what we actually do is different. So thank you so much, sir, for sharing it with us, and we got to know the practical aspects of fingerprint, and I'm sure it will definitely help our viewers and readers to learn from your experiences and what advice you have given to the upcoming forensic fingerprint experts. So thank you so much and for your time and knowledge, sir. Thank you so much. I would also like to express my gratitude to Mr. Fernandin. Always मतलब ये good time है forensic students के लिए कि अपने आप को upgrade कीजिए, upgrade करेंगे हम, obvious चीज़ है, we will get our destination surely. Thank you, मतलब stay healthy, stay safe and Jai Hind. Thank you, sir. Jai Hind, sir.